Let's go today. चलिए आगे I बढ़ते want हैं। to divert from what I've written down. I want to speak something which the Holy Spirit has laid on my heart. जो लिखे हैं उससे कहीं अधिक जो पवित्र आत्मा के हृदय में डाला है उसको बताएंगे। Okay, let's go to Matthew 16, please. चलिए जाते हैं मत्ती का 16वां अध्याय। Matthew 16 and verse 24, the foundation scripture. Open your Bibles. मत्ती का 16वां अध्याय 24वां वचन, चलिए बुनियादी वचन है ये, अपना बाइबल खोलें। And Jesus said to his disciples, if anyone desires, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे। this scripture is not for the pastors, the leaders, it's for anyone. Everyone say anyone. देखिए वचन जो है सिर्फ पासवानों या अगुओं के The लिए first one. हर एक के लिए है। It's an open invitation. ये देखिए खुला निमंत्रण है ये। If anyone desires, अगर कोई आना चाहे, the second thing, दूसरी चीज, there should be a desire in you. आपके अंदर एक इच्छा होनी A चाहिए। desire is the birthplace for miracles. इच्छा ही देखिए आश्चर्य के लिए जन्मभूमि है। Write it down. Desire is the birthplace of all transformation. और देखिए तमन्ना, इच्छा रखना ही ये सारे बदलावट, सारे रूपांतरण के लिए जन्मभूमि है। Hallelujah. Hallelujah. A young man sees a person playing the guitar very well on the stage. और एक नौजवान व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति को देखते हैं गिटार बड़े अच्छे से बजा रहा है मंच पर, And in him or her is born a desire. Yes, I also want to play. और उसके अंदर एक तमन्ना जाग उठती है कि हाँ मुझे भी ऐसे बजाना है। Hello, are you with me right now? और साथ में है इस वक्त। One young girl sees a woman on YouTube who's very fit and very, come on, hello, और एक नौजवान लड़की जो है किसी महिला को जो है देखती है यूट्यूब पर, बहुत ही तंदुरुस्त, एकदम फिट। come on, hello, चलिए nothing wrong. कोई खराबी नहीं है। It begins with a desire. और इसकी शुरुआत होती है इच्छाओं के साथ। Look at somebody and say desire. किसी को देख करके इच्छा, तमन्ना, Now, there are good desires. और ऐसी इच्छा तमन्ना अच्छी If होती है। anyone, the second point, write it down. दूसरा, Desires. इच्छाएं। When you see an anointed man of God, anointed woman of God, you feel, yes, even I want to grow in prayer. I want to go in the word. देखिए जब आप That's a परमेश्वर के good अभिषेक के desire. जन को देखते हैं तब आप कहते हैं कि हाँ मुझे भी प्रार्थना में बढ़ना है। ये अच्छी इच्छा है। So desire is the birthplace, is the breeding ground for miracles, for transformation, for change. तो देखते हैं Write it इच्छाएं down, जो please. होती हैं ये आपके जीवन में देखिए चंगाई के लिए या फिर देखिए रूपांतरण के लिए, बदलावट के लिए जन्म देने वाली जन्मभूमि है। So don't think that desire is all evil. Yes, there are evil desires, but then there are good desires also. ऐसा मत सोचिए कि सारी इच्छाएं जो कि गलत हैं, बुरी हैं। देखिए बुरी इच्छाएं भी होती हैं लेकिन अच्छी इच्छाएं भी होती हैं। Hello, are you with me right now? क्या साथ में हैं आप इस You वक्त? know, one young man wrote to me एक नौजवान युवक ने लिखा है, and said, उसने कहा, Pastor G, पासवान जी, I saw one testimony, मैंने गवाही को देखा। and in that testimony in Karuna Sadan, करुणा सर सेवकाई में एक उस गवाही में the boy forgave his father and mother and went back. और एक लड़के ने जो अपने माता पिता को क्षमा कर दिया और वापस लौट गया। He says, in me was born a desire और उसने कहा कि मेरे अंदर भी इसी इच्छा जागी to go back to my parents and honor them. कि मैं अपने माता पिता के What a वापस wonderful जाऊं और उनका testimony, सम्मान करूं। कितनी जबरदस्त गवाही है ना। Hallelujah. हालेलुया। So all desire, कभी-कभी हम सुनते हैं कि सब desires evil है, ऐसा नहीं है sir. अच्छी इच्छाएं भी होती हैं. So there are good desires. तो ऐसी अच्छी इच्छाएं भी होती हैं। Don't bury them. उन्हें गाड़िए मत। Let's go further. By चलिए point आगे number जाते 3. Anyone desires, what is the desire? To come after me. See, to come after Jesus. यीशु के पीछे जाना, To come after the things of God. परमेश्वर की चीजों के पीछे जाना। Pastor Michael, how do I grow in this walk with God? पासवान जी कैसे परमेश्वर के संग मेरे इस सफर में मैं बढ़ सकता हूँ? I really have a desire to grow in the things of God. परमेश्वर की चीजों में बढ़ने की मेरी दिली तमन्ना है। Hello, are you with me right now? क्या साथ में हैं I इस want to do something. कुछ करना चाहता हूँ। Here's it now. देखिए ये The है। third point, write it तीसरा down. मुद्दा लिख लीजिए। Let him deny himself. तो वो अपने आप का इनकार करे। Point number 3. तीसरा मुद्दा Write it down, please. लिख लीजिए। Let's go step by step. चले कदम दर कदम बढ़ते हैं। What is it? क्या है? Let him deny himself. Everyone say deny himself. वो अपने आप का इनकार करे। See, देखिए self always wants to rule over your life. और खुद स्वयं जो है हमेशा आपकी जिंदगी पर शासन करना चाहेगा। देखा आप लोगों को कहते हैं मैं, सब जो बोलो मैं, चलो क्या मैंने किया, मैंने किया, किसने किया? मेरी ताकत से किया। ये सब देख रहा हूं मेरी ताकत से, मैं, मेरी. These are all words of selfishness. और ये सब कुछ देखिए स्वार्थीपन के कहे हुए शब्द वाक्य हैं। How many of you listening right now? ये तो सुन रहे हैं। I, me, myself. मैं, मेरा ही, मेरे लिए। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? Yes. Why do you want to be blessed? I. क्यों तुम आशीषित होना चाहते हो? मैं। क्यों पैसा चाहिए? मेरे लिए. क्यों नाम शोहरत चाहते हो? मेरे लिए. Let him deny himself. वो अपने आप का इनकार करे। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? Deny himself. अपने आप का इनकार करे। You see, church? आप देखते The कलीसिया। first one is to deny yourself. और पहली चीज यह है कि अपने आप को आपको इनकार करना है।
Maybe you are battling an addiction. शायद हो सकता है आप किसी व्यसन से लड़ रहे हैं. The first place is to say no. पहली जगह यह है कि आपको कहना है नहीं. You're battling sexual addiction, sexual temptations. The first thing is to say no. और देखिए हो सकता है कि आप वासना भरे व्यसनों से या इच्छाओं Thoughts से are लड़ रहे coming हैं. in your mind. ऐसे ऐसे विचार आपके दिमाग में आते हैं. Speak with your mouth and say no. अपने मुंह से बोलिए और कहें नहीं. Now everybody says no, it's not a bad person, huh? बोले हाँ no बोला बोलते हाँ नहीं. इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं सब बोल रहा हूँ. So you know one great man of God he says speak out no. Everyone say no. परमेश्वर के महान जन ने ऐसा That is कहा the कि first step to denying yourself. अपने आप को नकारने के लिए इनकार करने का पहला कदम यह है कि अपना मुंह से बोले नहीं. You feel like doing something wrong. आपको ऐसा महसूस हो रहा है कुछ गलत करने के लिए? No. आप कहें नहीं. Everybody saying no. सभी लोग कहें नहीं. So when you deny yourself, तो जब आप अपना इनकार करते हैं you are on the step of following Jesus. तो आप यीशु के पीछे जाने वाले कदम को पकड़ चुके कितने हैं. लोग सुन रहे हैं? You should say no to the wrong desires and say yes to the right things. आपको गलत इच्छाओं के लिए ना नहीं कहना है और फिर उसके बाद सही चीजों के लिए आपको आगे बढ़ना है. And the next thing, take up his cross and follow me. और देखिए अगली चीज यह है कि अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले. Now, picking up the cross in Christianity is many people don't understand that. और देखिए मसीहत में क्रूस को उठाना देखिए बहुत सारे लोग समझते नहीं इस बात को. Now, it's good. We have plays. Come on, yes or no? We have plays in Karuna Sadan where, people pick up the cross and move. And it's good. Come on, hello. No और criticizing देखिए, anyone. कोई निंदा नहीं, किसी की निंदा नहीं. देखिए अच्छी चीज Hello, are है. you with me right now? But what does it mean to take up the cross? लेकिन ये क्रूस को उठाने का मतलब क्या है? To take up the cross means to crucify your flesh. क्रूस को उठाने का मतलब है अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाना. Everyone say crucifying the flesh. सब लोग कहें शरीर को क्रूस पर Come on, चढ़ाना. everybody say crucifying the flesh. सब लोग कहें शरीर को क्रूस पर चढ़ाना. Now, go with me to the book of Romans. I'll tell you why you need to crucify the flesh. और चलिए आपको बताते हैं कि क्यों आपको अपने शरीर को जो है क्रूस पर चढ़ाना है. Now, crucifying the flesh means ऐसा नहीं कि पट्टा लेना मारना है हे शू ये शू ऐसा नहीं. That's not called crucifying. शरीर की इच्छाएं होती है. सब लोग बोले शरीर की इच्छाएं होती है. Okay? Now, this struggle will be there. As long as we are on this earth, there will be a struggle between the flesh and the spirit. Everyone says flesh and the spirit. और देखिए जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक देखिए शरीर और आत्मा के बीच में संघर्ष होता रहेगा. Paul was a great man of God. पौलुस परमेश्वर के बड़े महान जन थे. And yet he had this struggle. और फिर भी उनके सामने ये संघर्ष का उनको सामना करना See पड़ा. what he says. देखिए वचन क्या कहता है. Knowing this, that the old man was crucified with him, that the body of sin might be done away, with that we should no longer be slaves to sin. Romans chapter 7, please, and verse 15. Thank you. रोमी की पत्री उसका 7वां अध्याय 15वां वचन. For what I am doing, everyone say, for what I am doing, सब लोग कहें I do not understand. जो मैं कर रहा हूं, मैं समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं. कितने लोग ऐसा डायलॉग मारा है? मारा रहेगा तो भी नहीं समझ में आया होगा. जब तुमको गुस्सा आता है, मुझे समझता नहीं मैं क्यों इतना गुस्सा होता हूं. Come on. चलिए अरे मैंने गुस्से में क्या बोल दिया रे. Come on, होता है कि नहीं? Yes. See what it says. देखिए For बच्चे क्या I कहते am doing, for what I am doing, I do not understand. जो मैं करता हूं उसको नहीं समझता हूं. नहीं समझता हूं. अरे यार गुस्से में मैंने बच्चे को मारा यार. नहीं मारना चाहिए था. For what I am doing, I do not understand. क्योंकि जो मैं करता हूं उसको नहीं समझता अरे हूं. मुंह से मेरी गाली निकल गई यार. यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. बड़ा आदमी था वो, अच्छा आदमी था. Are you listening right now? Yes. And see what it says. और देखिए For बच्चे what I will to do, what I want to do, जो मैं चाहता हूं करने को that I do not practice. वो नहीं किया करता. कितने लोग होता है? I want to pray. I want to get up in the morning at 6 o'clock and pray. But my bed has got so much of attraction power. और मैं सुबह 6 बजे उठकर प्रार्थना करना चाहता हूं लेकिन मेरे बिस्तर जो है इतना आकर्षक करने वाली सामत को लिए हुए हैं. गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो मैट्रेस की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी मजबूत है, उठने ही नहीं देता है यार. Hello, are you with me right now? अब साथ में हैं इस For वक्त? what I want to do. जो Everyone मैं say I करना want to चाहता do हूं. it. मैं करना चाहता हूं. Everyone say I want to do it. मैं राइस खाना नहीं चाहता रात को. लेकिन राइस खाए बिना हम साउथ इंडियन को नींद ही नहीं आती है. हालेलुया. और हमारे मैंगलोरियन को तो राइस मांगता ही है. राइस, इडली में राइस. कम ऑन नाउ, डोसा में. कम ऑन नाउ. हेलो, आर यू राइट नाउ? अब साथ में हैं इस Yes, वक्त? ये कार्ब्स छूटता ही नहीं है. और मध्य प्रदेश बाहर आता है. हालेलुया. सबसे बड़ा देश मध्य प्रदेश होता है. हेलो, आर यू देयर राइट साथ नाउ? में हैं इस प्लीज वक्त? डोंट गेट एंग्री ऑन मी. गुस्सा मत होइएगा. I'm not preaching your story, I'm preaching my story.
अपनी कहानी नहीं प्रचार कर रहे, अपनी कहानी बता रहे हैं। Hello, are you listening आप right सुन रहे now? हैं इस वक्त? Please listen to me. सुन आप रहे हैं। बोलेंगे किसकी स्टोरी बता रहे हैं? बोले आपकी स्टोरी नहीं, मेरी स्टोरी बता रहा हूं भाई. For what I will to do, that I do not practice. For what I hate, मुझे पसंद नहीं, वही मैं करता हूं. क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं वह नहीं किया करता, मगर जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। How many of you know that you can't stop with one laddu? कितने जानते हैं, देखिए आप एक लड्डू से रुक नहीं You सकते। can't stop with one gulab jamun. In Jesus' name, blood of Jesus, and then you eat the second one. Come on now. क्या क्या स्टोरी बनाता हम लोग. एक जन शादी में गया था, वो जलेबी लेके आया. पास्टर जी इस पे प्रार्थना करो कैलोरीज कम हो जाए. Of course he was joking. लेकिन वो मजाक कर रहा था। But the thing is, ये सच बात there ही are है। many things which I cannot share with you. There are certain things that you don't want to do. और देखिए ऐसी कुछ खास चीजें हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। Come on now. सुनिए, कितने लोग समझ रहे हैं? उसकी बातें हमने बात नहीं कर सकते यहाँ पर, लेकिन हम वो चीजें करते हैं. I want to give up smoking. मैं सिगरेट पीना छोड़ना चाहता I हूँ। know. मुझे पता It's है, written on the packet. पैकेट पे लिखा भी है, Smoking is injurious to health. I know it. धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। But मुझे still पता I do it. है, फिर भी मैं करता हूँ। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। So it's in smoking, it's in addictions, it's in alcohol, it's in sexual addictions, gaming, तो देखिए so many धूम्रपान, things. सब प्रकार के Wasting time. समय बर्बाद करना। I know. पता है मुझे। मुझे पता है रील देखना गलत है इतना. इंस्टाग्राम भी बोल देता है कि बस हो गया बेटा सो जा. Listen to me. सुनिए, How many of you understand this verse now? आप इस वचन को समझ गए अब। This is a struggle which Paul had. ये वो संघर्ष था जो पौलुस को भी सामना The करना पड़ा। battle between the flesh and the spirit. शरीर और आत्मा के बीच की Go with me लड़ाई। to verse 19, please. अब जाएं इस समय सीधे 19वें वचन में। Look, is this blessing you, church? क्या आपको आशीष Look at पहुंचा this. रही है? Lord, look at this. For the good that I will to do, for the good क्योंकि जिस अच्छे काम को मैं करने की इच्छा करता हूँ I do not do. वो तो नहीं करता, But the evil I don't want to do, I will not to do, that I do, I practice. मगर जिस बुराई की मैं इच्छा ही नहीं करता वही क्या करता हूँ। My third point, fourth तीसरा point. मुद्दा, चौथा मुद्दा। When you, listen, want to rise up in the spirit, देखिए जब आप आत्मा में ऊंचा उठना चाहते हैं, that time you need to crucify the flesh. उस समय आपको शरीर को क्रूस पर चढ़ाने की जरूरत Look है। at somebody and say, crucifying the flesh. किसी को देखकर कहें शरीर को क्रूस पर चढ़ाना। Dear young man, प्यारे नौजवानों, dear young woman, प्यारे नौजवान and the युवती young at heart. और जो दिल के जवान हैं, बाजू वाले को बोल दिल का जवान. जो 40, 50, 60 ये लोग यंगस्टर्स से भी जवान हैं. दिल के जवान. सब जो बोले दिल के जवान. हाँ, दिल के जवान. Okay? I'm talking to everybody. सभी से कह रहे हैं You need to crucify the flesh. आपको अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाने If की you जरूरत don't do that, है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे you will never reach your destination. आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। Can I have a good amen, क्या एक please? अच्छा मैंने सुन सकते हैं यहाँ? Hallelujah. हालेलुया। Go to Galatians 5:17. I want to give you scripture. Otherwise, you'll never achieve what God wants for you. नहीं तो कभी आप उस चीज को पा नहीं सके जो परमेश्वर आपके जरिए Some करना of you चाहता have a good wife. Some of you have a very good husband. You have a good family. But because the flesh is screaming, you cannot be blessed in that area. है। कुछ लोगों के पास अच्छी पत्नियां हैं, अच्छे पति हैं, अच्छा परिवार है, लेकिन क्योंकि शरीर चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, इस वजह से आप उस क्षेत्र में आश नहीं पाते हैं। देखो क्या लिखा है. For the flesh lusts against the spirit. The flesh what? Lust against the spirit. And the spirit lusts against the flesh. So there is a fight. तो आप देखते हैं यहाँ पर एक दूसरे से लड़ाई होती है। I told you there is a fight. आपको बताया कि लड़ाई होती है। सब जो बोले मैं जानता हूं सही क्या है, फिर करते क्यों नहीं हम? ये फाइट चल रहा है अंदर. और जब तक आदमी इस देह में है, जब तक आदमी इस संसार में, ये फाइट चलती रहती है. सर बोले तू इतना सब बाइबल जानता है, तू करता क्यों नहीं? सर इसी वजह से. तू यीशु को जानता है, करता क्यों नहीं? इसी वजह से. बोले तू प्रार्थना करने के विषय में तू इतना बात करता है, तू इतना जानता है, तू करता क्यों नहीं है? इसके वजह से. And these are contrary to one another, opposite to each other. और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। So you do not do the reasons. That is why you don't do the things that you wish. इसी वजह से जो चीज करने की आप इच्छा करते हैं आप उससे नहीं करते हैं। How many of you following me right ये now? तो समझ रहे हैं। The flesh will constantly oppose the things of God. और देखिए शरीर जो है निरंतर जो है परमेश्वर की चीजों का विरोध करता And रहेगा it will stop you from fulfilling God's purposes. और ये आपको रोकेगा परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने से। How many men lost a good family because they could not control their desires? और कई सारे मर्दों ने जो है अपने परिवार को गंवा दिए क्योंकि वे अपने आप पर काबू नहीं रख सके। Come on. As a pastor, I can tell you this. एक पासबान होने के नाते आपसे कह सकते हैं How many women कितनी सारी महिलाएं
gave up on their families अपने परिवारों को उन्होंने छोड़ दिया because they could not control their passion. क्योंकि अपने जुनून पर वे काबू नहीं रख सकी. How many men they fell into sickness and disease? They are good people, not bad people, mind you. I'm not criticizing anybody. और ये किसी की निंदा नहीं कर रहे, बुरे लोग नहीं, अच्छे लोग हैं. Because they knew that this thing is wrong, but they could not control their lust for alcohol, for cigarette. बोले ये नहीं लेगा तो नहीं होता है, pastor, नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? बोले मैं अपनी पत्नी बच्चों से बहुत प्रेम करता हूं, उनके लिए 10-10, 12-12, 14-14 घंटा काम करता हूं, लेकिन ये सिगरेट छूटती नहीं यार, ये मावा जर्दा नहीं छूटता यार. कितने लोग सुन रहे हैं? Today God is saying, आज परमेश्वर कह रहा है, you need to give up those things. तुम्हें उन चीजों को त्यागने की जरूरत है. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? नहीं छूटता है, नहीं छूटता है. बोले मैं बहुत अपना प्रेम करता हूं, मेरे परिवार से, यीशु से प्रेम करता हूं, लेकिन यार स्वीट्स पे कंट्रोल नहीं होता, ये एडिक्शंस पर कंट्रोल नहीं होता यार. आज आपको आपका जीवन रेगुलेट करना होगा. Today can I have a good amen एक somebody? अच्छा मैं सुन सकते हैं यहाँ पर. बोले सब कुछ कर सकता हूं यार, लेकिन प्रार्थना नहीं होता यार, प्रार्थना नहीं होता है. बोल रास्ते पे झाड़ू मारूंगा मैं, लेकिन प्रार्थना मत बोल यार तू. Are you following me, आप church? समझने के लिए This is your battle, sir. This is your battle, sister. यही तो आपकी लड़ाई है भाई और बहनों. This is your battle. ये आपकी लड़ाई है. तुम्हारे गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं होता है. मुंह बोल खोलने से पहले हाथ उठ जाता है तेरा. ब्रूसली. Praise the Lord. वो हेलो बोलने से तेरा एक उसके पूरा महाराष्ट्र आ जाता उसके पे. नहीं हमारा हाथ उठ जाता है ना इतना. जाएगा क्या नहीं तू कुरला? नहीं जाएगा, ये ले फाट. गुस्सा. कितने लोगों ने अपने गुस्से के वजह से कितने रिलेशनशिप तोड़ दिए? गुस्से में कुछ भी बोल दिया और बाद में सोचते हैं अरे यार क्या बोला मैंने. This is the thing. ये है चीज. This is the thing. Today God is saying, आज परमेश्वर कह रहा है, is there a way out? क्या निकलने का कोई जरिया He है? says yes. वो कहता है हाँ. You have to deny yourself तुम्हें अपने आप को नकारने and की you have to जरूरत है. crucify the flesh. तुम्हें शरीर को क्रूस पर चढ़ाने की Lift your जरूरत है. hands and say, I receive this word अपने today. हाथ उठा और कहे मैं ग्रहण करता इस वचन को आज. Hallelujah. कहे हालेलुया. Are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? Yes. You have to crucify the flesh. आपको अपने शरीर को क्रूस पर I चढ़ाने want की to जरूरत share with you something that will really, it will open your mind. है. देखिए आपसे कुछ साझा करना चाहते हैं जो कि सचमुच आपके दिमाग को खोल Just देगा. because you have given, my fifth point. पांचवा मुद्दा, Just because you have given your life to Christ, your name is a Christian name or you attend a Christian church does not mean you have overcome the flesh. It's a daily battle. Everyone say it's a daily battle. और देखिए क्योंकि आपने अपनी जिंदगी देखिए आपने यीशु मसीह को सौंप दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लड़ाई से आपको जूझना नहीं पड़ेगा. ये रोज की लड़ाई है. नहीं मैं मसीह में हूँ. नहीं सर, मसीह में है तो तुम्हारे लिए प्रभु थोड़ा आसान बनाएगा. Jesus said carry your cross daily. Everyone say यीशु ने कहा, daily. Say it again. Carry your cross daily. Everyone say daily. रोज प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ. यीशु मसीह ने प्रार्थना करने से कहा प्रतिदिन की रोटी. समझो हम लोग प्रतिदिन की रोटी. ऐसा नहीं बोला हफ्ते भर की रोटी. ऐसा बोला क्या? नहीं. Give us today a daily bread. Daily bread, sir. Daily. रोज की रोटी. रोज की रोटी. In the same way, उसी तरह से Jesus said, यीशु ने कहा, crucify, carry your cross daily. अपना Everyone say क्रूस रोज daily. उठाओ. So there are dailies in God. You have to do certain things daily. तो देखिए परमेश्वर में ऐसे रोज कुछ काम करने जरूरी होते हैं. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. So now, Pastor, what is if I don't crucify the flesh? What will happen? Here's what will happen. और क्या होगा पासवान जी कि अगर मैं अपने शरीर को क्रूस पर नहीं चढ़ाऊंगा तो सुने क्या होता है. The first one. पहला है, See, if you don't crucify the flesh, देखिए अगर आप अपने शरीर को क्रूस पर नहीं चढ़ाते, you expose yourself to demonic powers. Please write this down. देखिए आप शैतानी शक्तियों के लिए अपने आप को खुला कर देंगे. Hello. Very, very important, sir. Write it down. This is a word for you. देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण लिख लीजिए. वो You आपके लिए वचन है. expose yourself to demonic powers. आप अपने आप को शैतानी शक्तियों के सामने खुला कर देंगे. Why? क्यों? Because this is one area of your life that is not surrendered to God. क्योंकि आपकी जिंदगी का ये एक ऐसा क्षेत्र रहेगा जो कि परमेश्वर को समर्पित नहीं है. I love the Lord. मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, But this area, please, लेकिन ये क्षेत्र मेहरबानी करके that is your area of compromise. वो है आपके समझौता करने का क्षेत्र. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Yes. That is the very place
where the enemy will where you have opened a door, and through that door the enemy will enter. और देखिए यही वो दरवाजा है जिसे आपने खोला है और उसी दरवाजे के जरिए शत्रु अंदर आ जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनिए, क्या आपने सुना है ऐसा? वो बोलते हैं बहुत अच्छा आदमी है यार, बहुत दिल का अच्छा आदमी है, लेकिन जब एक पैग मारता है ना, बोले शैतान बन जाता है। कितने लोगों ने सुना ऐसा? सुना है कि नहीं? बोले दिल का बहुत अच्छा है, गरीबों की सेवा करता है, चर्च में सेवा करता है, क्या बोले करता है, लेकिन सर एक पैग मारेगा ना सर, वो हैवान बन जाता है। You see church? अब देखते कलीसिया, What are they trying to say? वो कहना क्या चाह रहे हैं? Says he is a good man. वो कह रहे हैं ये अच्छा But आदमी है। there is one door open in his life. लेकिन इस जिंदगी में एक दरवाजा खुला हुआ है, Because of that, उसके वजह से the enemy is entering in. शत्रु अंदर घुस जाता है And one door is enough. और एक दरवाजा काफी है। Come on now. Hallelujah. हालेलुया। There was a man. एक आदमी था, वो एक ऐसी सभा में जाता है और यीशु से प्रार्थना करता है, बोलता है यीशु, पास्टर जी बोल रहे हैं कि मसीह को दिल में बुला लो, तो मैं दिल में बुला लेता हूं। तो उसके बहुत सारे कमरे होते हैं, सबने बोले बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे कमरे होते हैं। तो बोलता है यीशु, आज मैं तुझे मेरा दिल का किचन में तेरे हाथ में देता हूं। क्या देता हूं? किचन। तो उस दिन रात को सोता वो, एक दरवाजे पे खटखटाहट आती है, बोले कौन है? दरवाजा खोलता है तो शैतान है। अरे अंदर आता है, घुसता, मारता है उसको, बहुत मारता है, उसके आंख वांख पूरा काला हो जाता है। सुन रहे क्या? लोग पूछते क्या हो गया रे बाबा, तू प्रार्थनामध्ये गेलेलास, तुझं चांगलं होण्याच्या बद्दल तुझे एक आंख असा झाला। पूछते अरे क्या हुआ, तुम प्रार्थना में गए थे, तुम्हारा सब कुछ ठीक होने के बाद तुम्हारी आंख ऐसी क्यों ऐसे हो गई? हेलो, वो बोलता हाँ यार मैं प्रार्थना में गया था, अच्छा होने के बजाय मेरा एक आंख सूज गया ऐसा। कैसा भी आता है पास्टर का दूसरा 40 डेज 35 डेज फास्टिंग में ना उसका। हेलो हेलो हेलो, बेचारा रोज आता है, अच्छा आदमी है, बाजू का अच्छा आदमी तेरे जैसा, अच्छा आदमी, और जो देख रहे हैं आपके जैसा। हालेलुया। तो उस दिन थोड़ा अनॉइंटिंग ज्यादा रहता है। कम ऑन नाउ, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना में पास्टर थोड़ा प्रार्थना करके आए हैं, तो बोलता है प्रभु आज मैं तुझे हॉल, अपना हॉल भी देता हूँ, दिल का हॉल। सब जो बोले दिल का हॉल, दिल का हॉल, हाल नहीं है हॉल। ओके, किसने हाल बोला? ओके, हॉल। तो कम ऑन नाउ, प्रेज द लॉर्ड। बहुत रोता है बेचारा, अभी एक आंख सूजी है तो रोने तो आएगा ना भाई, मार पड़ी है तो रोने आएगा ना। तो उस दिन बोलता है अरे प्रभु को मैंने किचन दिया, प्रभु को मैंने हॉल दिया, बहुत बड़ा काम किया मैंने, बहुत बढ़िया काम किया। और उसको मालूम है अभी ये 12 बजे ना ये शैतान आता है, तो क्या करता है ना, दरवाजा खोलता नहीं है, तोड़ आवाज आता है, बोलता आ गया शैतान, थोड़ा सा खोलता है। शैतान बहुत शाना है, एक पैर ऐसा अंदर डालता है, खोलता, मैं मार उसको, फटके और फटके मिलते हैं उसको, पूरा हाथ वाथ तोड़ता है। नेक्स्ट डे चर्च में जाता है, बोले क्या हो गया क्या हो गया भाई? बोलते हैं ये फास्टिंग प्रेयर में मजा नहीं आ रहा है। बोलता है पास्टर तो बोलते हैं फास्टिंग करा, प्रेयर करा, काय होतच नाही है इथे। बोलते पहला आंख टूट गया, अभी हाथ वाथ टूट गया, ऐसा फास्टिंग करेगा तो बोलता मर जाएगा एक दिन में। कितने लोगों ने सुना है? और फिर उसको लोग बोलते हैं बाबा ज्यादा डीप मत जा। कितने लोगों ने सुना ऐसा? प्रार्थना ज्यादा मत कर, प्रार्थना ज्यादा करेगा तो डेविल आएगा तेरे पीछे। कितने लोगों ने सुना है? आपने सुना है ना? इसीलिए बाबा मैं खाली बाइबल लेता हूं, चूमता हूं, रख देता हूं। हालेलुया। यीशु भी नहीं आते, शैतान भी नहीं आता है। कितने लोगों ने सुना है भाई लोग? नहीं सुना है? बोले तुम ही करो प्रार्थना, मैं बैठता है दूर से बस। सुना है ना ऐसा? उस दिन बहुत रोता है चर्च में। उस दिन 35th डे रहता ना, पास्टर कम ऑन वालो, 35 कम ऑन वालो, 5 ही दिन है। बहुत रोता है बेचारा, बोलता है यीशु अगर तू नहीं आएगा तो मैं चर्च छोड़ देगा। मैं आएगा नहीं अभी आयत से। उस दिन यीशु मसीह आते उसको बोलता है बेटा तूने तेरा किचन मुझे दिया, हॉल दिया, सब तू दे, लेकिन एक कमरा छोड़ दिया। बोले क्या प्रभु? कौन सा कमरा? बोले बेडरूम तो नहीं दिया। बोलता सबसे मेन रूम, वहां पे तेरे सब सीक्रेट वहां पर है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो प्रभु बोलता है दे दे मुझे। बोलता नहीं दूंगा। बोलता दे दे मुझे, नहीं दूंगा। कैसा भी करके 35th डे ऑफ रहता ना फास्टिंग, तो दे देता वो रूम। बोलता प्रभु ले,
भी सब कुछ तेरा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाजू वाले को बोल, मेरे जैसा मेरा कुछ नहीं है अभी। सब अपने हाथों को उठाकर, कोई बोलना चाहते तो बोलो, नहीं बोलना चाहते तो मत बोलो। बोले प्रभु अभी मेरा कुछ भी नहीं है। अरे देखो नहीं बोल रहे आप, मुझे पता है सरेंडर करने बहुत डिफिकल्ट है भाई, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग हैं ना जो कंट्रोल चाहते हैं। बोले प्रभु 80% तेरा, 20% मेरा। लेकिन सरेंडर जो चीज है, क्रूसिफिक्शन ऑफ द फ्लेश, द फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन सरेंडर। शरीर को क्रूस पर चढ़ाना, देखिए ये पहला, देखिए मुद्दा यह है कि समर्पण है। ये डिनाइंग योरसेल्फ मींस सरेंडर। अपने आप को नकारने का मतलब है समर्पण। माझी इच्छा नहीं प्रभु, प्रभु परंतु तुझी इच्छा। मेरी इच्छा नहीं प्रभु मगर तेरी नॉट इच्छा। माई विल बट योर विल बी डन। मेरी इच्छा नहीं मगर तेरी इच्छा पूरी कितने हो। लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो उस दिन वो अपना कमरा बेडरूम देता, बोले क्या प्रभु न खोया था, बस साला माला। उस दिन रात को बहुत रोता वो। बोले फर्स्ट डे गया, 33 डे को बोला बहुत अनॉइंटिंग है, ये वो है, ऐसा करके गया मैं। 34 को डे आ रहा है, 35 डे, आज तो मैं मरने वाला है भाई। रात को जब सोता है 12 बजे वापस, बोलता आज भी शैतान आ गया, देखा सरेंडर करके कुछ फायदा नहीं। तो बोलता आज दरवाजा ऐसा होल से देखने ही जाता है, उतने में ऐसा आवाज आता है, चक 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 चक। बोले यार अब तक तो बाहर से आवाज आ रही थी, यहां से अंदर से कौन जा रहा है अभी बाहर यार? कितने लोग सुन रहे हैं? पीछे देखता तो यीशु खड़े हैं उधर। बोलता है बेटा आज 35th डे है। हाँ सुनो ना, सुनिए, सुन रहे हो ना आप लोग? हाँ सुन रहे हो ना? ठीक से सुनो। अच्छा आज पूरा सरेंडर, आज आप पिटेगे नहीं। हाँ बाजू वाले को आज तू पिटेगा नहीं। पड़ोसी बोले आपने पीटे। तो बोलता है बेटा तूने फर्स्ट डे को तेरा किचन दिया, सेकंड डे को तेरा हॉल दिया, लेकिन अब तक तूने तेरा पूरा जीवन मुझे नहीं दिया था। बेडरूम बाकी था, सब तेरे कांड जो उधर छुपे हुए थे। बाजू वाले को बोलो कांड, कांड समझते ना? हाँ सब गुप्त चीजें उधर छुपी हुई थी, लेकिन आज तूने सब कुछ मेरे नाम लिख दिया। आज से ये तेरा शरीर, तेरा घर, तेरी जिंदगी तेरी नहीं है, ये सब इसका मालिक मैं हूं। तो बोलता अभी दरवाजा तू नहीं खोलेगा, मैं खोलूंगा। यीशु मसीह जाता है, दरवाजा खोलता है, शैतान देखता है, ओ यीशु बेंड करता जाता है ऐसा। कितने लोग सुन रहे हैं? ये तो सुन रहे हैं इस वक्त। आज शैतान पर आप जय पाओगे। That's the way. The first thing is to surrender your life to the Lord. पहली चीज यह है कि आप अपनी जिंदगी प्रभु के हवाले Your करें। thoughts, Lord, I surrender विचार। my thoughts to you. प्रभु मैं अपने सारे विचार को तेरे हवाले Not करता हूं। my will. प्रभु मेरे thoughts इस दिशा में जाते हैं, नहीं मैं ये नहीं जाऊंगा, मैं इस दिशा में जाऊंगा। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? प्रभु मुझे उस जगह पे थोड़ा सा आकर्षण हो रहा है जाने के लिए, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। लगता है उसको कॉल करने के लिए, रात के 2 बज गए अभी, ऐसा लगता है थोड़ा कॉल करूं उसको, थोड़ा चैट करूं, बाद में कॉल करूं, नहीं करने का। कितने लोग सुन रहे हैं? जिसके पास कान है, जिसके पास है, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि उधर गिरते आप, उस रास्ते पे आपको नहीं जाना है। Tell your neighbor, I will not walk that path. अपने पड़ोसी को बोले मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे दोस्त लोग बुला रहे हैं, कोई बुला रहे हैं, हालेलुया, टॉम बुला रहे, टॉम पे बॉम्ब डालो आज, नहीं जाना है भाई। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल? ये तो सुन रहे हैं इस वक्त। नहीं जाना है, बाजू वाले को रास्ते पे नहीं जाना अपने है। पड़ोसी को बोले उस रास्ते पे नहीं जाना है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। दैट प्रभु इज से कॉल्ड सरेंडर। लॉर्ड, आई विल नॉट वॉक ऑन माय वे, आई वांट टू वॉक ऑन योर वे। और यही कहलाता है समर्पण। प्रभु मैं अपने रास्ते पे से नहीं जाऊंगा, मैं तेरे मार्ग में सो चलूंगा। क्रूसिफिक्शन मींस व्हाट? तो क्रूस पर चढ़ाने का मतलब क्या है? Crucifixion means surrender. क्रूस पर चढ़ाने का मतलब है समर्पण। Come on, hallelujah. चलेगा, hallelujah. And when you surrender, और जब आप समर्पण all करते the हैं, doors of your life are closed to the devil, and only the door to Jesus is open. Hallelujah. तो फिर उसके बाद शैतान के लिए आपके Yes. जिंदगी में हर दरवाजे बंद हो जाते हैं, सिर्फ यीशु का दरवाजा खुला रहता The है। way the man surrendered his whole house to God. जिस तरह से उस व्यक्ति ने अपना पूरा घर प्रभु को समर्पित Can you किया। give me the amplified version? Ephesians 4:27. इफिसियों 4:27 वचन। Look what it says. देखिए वचन क्या Give कहता है? no place to the devil. शैतान को कोई स्थान मत दो। Can we read together with me? Everybody, those who are watching also. Leave no such room or foothold for the devil. Give no opportunity to him. देखिए वचन में लिखा है, शैतान को पांव रखने की भी जगह मत दो। अरे क्या बात है, सब जो बोला पांव रखने की। क्या रखने की जगह मत दो? पांव भी रखने की जगह मत दो। आगे बढ़िए। और उससे कोई मौका मत दो। मौका मत दो। शैतान मौके के लिए रुका रहता है। बोले ये जाएगा पार्टी में, बाहर के उधर खड़ा रहेगा और आएगा वेटर लेके। प्रेज द लॉर्ड।
कहे प्रभु की स्तुति हो। खड़े मत, मौका मत दो, बोल से मौका मत दो। यू नो कि ये कॉल करने से तुम परीक्षा में गिरो, मत करो। तुमको मालूम है मैसेज व्हाट्सएप से शुरू करते हो, बाद में कॉल करते हो, मौका नहीं देना। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? डोंट डू इट, डोंट। आई डोंट नो, पास्टर इज टॉकिंग टू मी ओनली टुडे। आपको कह रहे हैं कि पासवान जी, लगता है मुझसे ही बोल रहे हैं। यस। हाँ, उस दुकान पे जाओगे तो मुझे, आपको मालूम है, बोले सर आपका फेवरेट, नहीं, उस दुकान पे जाओ ही मत। सब कहेंगे आमेन, जोर से बोलो। मालूम है उस दोस्त के साथ जाओगे तो तुम जाओगे बार में, मत जाओ। प्रेज द लॉर्ड। बोले प्रभु की स्तुति हो। सब जन जोर से बोलिए, पांव रखने की जगह मत दो, मौका मत दो। These are the two things of surrender. ये दो चीजें हैं समर्पण का। When you don't crucify the flesh, जब आप शरीर को क्रूस पर नहीं चढ़ाते, the power of the flesh is multiplied and the power of the spirit is subtracted. तो शरीर की इस ताकत जो है ये बढ़ती चली जाती है और आत्मा की सामत घटती जाती है। I'll say that again. फिर से कहेंगे, When you don't crucify the flesh, जब आप शरीर को क्रूस पर नहीं चढ़ाते, the power of the flesh will multiply. तो शरीर की शक्ति जो है बढ़ती जाती है। You'll get angry faster. आपको जल्दी से गुस्सा आने लगेगा। Temptations will be easy. परीक्षाएं में पढ़ना बहुत आसान होगा। You'll manipulate, lie, and this and that. और छलबाजी आप करते रहे, झूठ And बातों the को power of the spirit will go down in your life. और आत्मा की समझ जो आपके जिंदगी में घटती हुई How जाएगी। many of you following me right now? कितने समझ It will रहे be very difficult to forgive people. लोगों को क्षमा करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। Come on now. चलिए, Not outsiders, the very people you love. बाहर के लोग नहीं, वही लोग जिनसे आप प्यार करते हैं। छोटी छोटी बातों को तुम पकड़ के रखोगे। छोटी छोटी बातों को आप पकड़े रखेंगे। किसी लोग सुन रहे मैं क्या कह रहा हूँ? उसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? अरे छोड़ना यार, नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं, कोई उड़ गया अभी। उसने स्माइल नहीं किया, मेरी बीवी मेरे माँ को स्माइल नहीं किया। अरे तेरी माँ को नहीं किया, छोड़ना है, तुझे किया ना, छोड़। छोटी छोटी चीजों को पकड़ के रखोगे। मुझे मेरी सीट में मुझे बैठने नहीं मिला, हमेशा वो कॉल ही नहीं बैठता है। छोटी छोटी। Praise the Lord. No, I'm telling you, कह रहे हैं आपसे, little things. छोटी छोटी चीजें। You'll not, and this is against your own people, your son, your daughter-in-law, your son-in-law. These are the people whom you love. और ये वो लोग हैं जिससे आप प्यार करते हैं। क्या छोटे छोटे चीज पकड़ के बैठा है? क्योंकि why you know? Because the power of the flesh is multiplied. क्यों? आप जानते हैं क्योंकि शरीर की शक्ति ना ये बढ़ रही है। मैं उसको बताऊंगा, देख अभी तू देख मैं क्या करेगा, क्या करेगा तू? मारेगा ना, काटेगा ना, ये शरीर बात कर रहा है। Power of the flesh will multiply. शरीर की शक्ति बढ़ती जाएगी। उसने ये किया ना, देख मैं क्या करेगा उसको। Power of the flesh is multiplied. शरीर की शक्ति बढ़ेगी Because now you're not dealing with the flesh. क्योंकि अब आप शरीर से निपट नहीं रहे And the spirit will go down. और आत्मा की सामत नीचे जाएगी। How many of you are listening right now? कितने सुन रहे हैं? If you want to grow in the anointing, अगर आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, then you have to crucify the flesh so that the spirit will grow up in Jesus' name. तो आप शरीर को क्रूस पर चढ़ाने की जरूरत है ताकि आत्मा जो है वो बढ़ता जाए। And the third thing, when you don't deal with the flesh, जब आप शरीर से नहीं निपटते, it will bring you under a curse. ये आपको श्राप पे लेकर आएगा। Very dangerous. बहुत ही खतरनाक है। It will bring you under a curse. ये आपको श्राप के नीचे लाएगा। Listen to me what I'm saying. सुनिए ध्यान से, Carefully. सावधानी I से। did not say a Christian can be under a curse. What I said is, if you don't crucify the flesh daily, you will walk under a curse. देखिए, ऐसा नहीं कहा कि एक मसीही जो होता है वो श्राप में आ सकता है। ये ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप रोज शरीर को क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे तो आप श्राप में चल सकते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? When you walk under a curse, जब आप किसी श्राप में चलते हैं, जो काम होते होते वो रुक जाएगा। बोले यार इतना नजदीक आया, बोले हुआ नहीं। These are a sign of a curse. और ये सब श्राप की निशानी है। Come on, hello. सुने। सर अब भी थे, अब भी गए। अरे बाबा इधर ही था सर, आप ये दरवाजे से गए, वो दरवाजे से गए। और ये सच है। Do you have sign of a curse? ये सब श्राप की निशानी है। I've seen it operating in people's lives. लोग जिंदगी में होते हुए देखे, So close and so far. इतना करीब होते हुए इतना दूर। हेलो, सुने, बोले सर आप कल आना चाहिए था, इंटरव्यू आपको मिल जाता था। This is the things. Look at this verse. Can I share with you? क्या आपके साथ बांट सकते हैं? So that's why I'm telling you. Come on, इसलिए कह रहे हैं आपसे। put it Jeremiah 17 verse 5. Thus says the Lord. प्रभु ये कहता Cursed है, is the man who trusts in man. श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। It's okay till then. Now, and makes flesh his strength. और आगे लिखा है, और
उसका यानी शरीर का वो सहारा लेता है। सब जो बोलिए शरीर का सहारा लेना। खुदा कहता है शरीर का सहारा मत लो, आत्मा का सहारा लो। ज़करिया 4:6 not by might no by power but by my spirit। ज़करिया 4:6 न तो See? बल से न शक्ति से मगर उसकी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। मरियम ने शरीर का सहारा नहीं लिया, आत्मा का सहारा लिया। She was ordinary woman, वो एक साधारण सी औरत थी, 16 years। 16 साल की। Come on now। चलिए, शरीर का सहारा नहीं, she depended on the Holy Spirit। पवित्र आत्मा पर वो पूरी तरह निर्भर हो गई। बोले लोग मेरे, अरे सोचिए ना सर, एक औरत जवान और लड़की 16-17 साल की, वो सबको बोलती है बच्चा मेरे अंदर जो है पवित्र आत्मा का है। लोग हंसते होंगे, हाँ हमको पता है पवित्र आत्मा का। अरे नहीं, सच्ची पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे विजिट दिया। बोले बाइबल में किधर लिखा है? तब तक बाइबल में ऐसा कोई मिरेकल नहीं था। There was no miracle like that। इस तरह का कोई आश्चर्य कभी हुआ नहीं था। How she must have battled। कैसे वो लड़ी होगी इस It बात was से? through the Spirit। आत्मा के जरिए था, It was by the Holy Spirit। पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। Hallelujah। हालेलुया। She could have said ना, look तूने ऐसा मेरे विरुद्ध बोला है, तेरे पे शाप आएगा। हेलो 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 हेलो। अगर हम लोग ऐसा कोई बोलते थे, हम लोग दुख में बोलते थे ना, तू ऐसा बोल रहा है मेरे अंदर सचमुच यीशु है, तेरे पे शाप आएगा। Come on, yes or no? She could have said it and it would have happened। उन्होंने कहा होता She और didn't ऐसा do हुआ that। भी होता, She didn't do that। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। She depended on the Holy Spirit। वो पवित्र आत्मा पर निर्भर हो गई। Sometimes we feel like retaliating against people। तूने मैंने तेरा अच्छा चाहा, तूने ऐसा किया ना, तेरे पे शाप आएगा, देख तेरे पे ऐसा होगा, तेरा ऐसा कभी ठीक नहीं होगा। Don't depend on the flesh। शरीर पर निर्भर मत होए। Jeremiah 17 please। Makes flesh his strength, and whose heart, when you make flesh your strength, your heart, your mind will depart from God। जब आप शरीर का सहारा लेते हैं, देखिए, तो आपका मन, आपका हृदय जो है परमेश्वर से दूर हो जाता है। Look at somebody and say, such a person's heart will depart from God। ऐसे व्यक्ति का हृदय जो है परमेश्वर से भटक जाएगा। क्योंकि अभी वो अपनी ताकत के सहारा जी रहा है। Today, that is why church, इसलिए कलीसिया, you need to crucify the flesh। आपको शरीर को क्रूस पर चढ़ाने की Paul जरूरत है। says, पौलुस कहता है, I die daily। मैं रोज मरता हूं। Oh Jesus। Paul says what? फिर पौलुस क्या कहते हैं? I die daily। मैं प्रतिदिन मरता हूं। बहुत सारे सालों तक मैं समझा नहीं पॉल क्या बोल रहे हैं। बोले ये रोज मरता है, ये तो जिंदा है। हमने अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। कि तो समझ गए इस वक्त? Isn't it a mystery? क्या कि रहस्य नहीं है? Paul says I die daily। फिर पौलुस कहते हैं कि मैं रोज मरता हूं। कैसे भाई कैसे? There is a secret इसके वजह रहस्य है in prayer। प्रार्थना में। How can you crucify the flesh? First is सब शरीर surrender। को क्रूस पर चढ़ा सकते हैं। Second is prayer। Come on, everyone say spirit prayer। You know, सब लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे दे, प्रभु मुझे दे। ये अच्छी प्रार्थना है। There are 3 levels of prayer। प्रार्थना के 3 स्तर हैं। Asking। मांगना, You have to rise above that। पूरा दुनिया प्रेयर करती है, प्रभु मेरे बच्चे के लिए नौकरी दे, प्रभु मुझे अच्छा घोड़ा दे, बैल दे। Come on, अच्छा नहीं, ये गलत नहीं है, सही है। लेकिन there is a second level of prayer। Everyone और say देखिए second प्रार्थना का level। दूसरा स्तर भी होता है, Seeking level। वो खोजना, ढूंढने जहां वाला पर स्तर। हम लोग प्रभु को ढूंढ रहे हैं। बोले प्रभु तूने मुझे नौकरी दी, छोकरी दी, गाड़ी दी, साड़ी दी, सब अच्छा है प्रभु, सब बढ़िया है। अभी प्रभु बस अभी मैं तुझे ढूंढता हूं। ये लेवल पे, कम ऑन एवरीवन से, ये लेवल पे लोग इस लेवल पर तुम्हारी इच्छाएं मर जाती है। कितने लोग सुन रहे हैं? अभी ये तीसरा लेवल, नॉकिंग लेवल, जहां पर प्रभु को आप मिलते हैं और प्रभु से आप बातें करने लगते हैं। नॉकिंग, सब जो बोले नॉकिंग, दैट इज अ रेवलेशन, जहां यह पर है आपको प्रकाशन। आपको गहरी चीजों की समझदारी मिलती है। हालेलुया। बोले ये तो चौथी फेल है, ये तो ऐसा यार, ये तो ये ऐसा है। सर चौथी फेल है, लेकिन ये प्रभु से बातें करता है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप सोच सकते हैं आप बहुत साधारण सी स्त्री हैं, साधारण से आदमी है, लेकिन आप ये लेवल में पहुंचोगे तो खुदा आपकी समझ को खोल देगा। और जब आप बातें करोगे ना तो बोलेगा अरे ये बात क्या करता है, ये बोलता है मुझे अच्छा लगता है। नॉकिंग लेवल, एवरीवन से नॉकिंग लेवल, खटखटाने का स्तर। नॉकिंग लेवल। इज एनीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? क्या कुछ समझ नहीं आ रहा? क्योंकि जब आप नॉक करते हो तो कुछ तो खुलता है ना सर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुलता है ना। बोले कौन है? बोले मैं हूं। खोल दे। अरे खुल गया सर। और प्रभु का दरवाजा खुलेगा ना तो सर
फिर क्या उसके परे है, उसके पीछे कितने गुप्त रहस्य है, वो सबका खुलासा तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। हालेलुया। जिन बातों को इतने सालों से छुपी हुई थी, वो रहस्य तुम्हारे अंदर खुल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग बिजनेस के लिए 10-10, 20-20 साल लगाए, तुम्हारे लिए प्रभु एक दिन में खोल देगा इन जीसस नेम। सर, आई चैलेंज यू, आपको चुनौती देते हैं, ओपन दैट डोर टुडे। उस दरवाजे को खोलिए आज। मांगने के परे यू गोइंग टू सीकिंग, यू गोइंग टू नॉकिंग। मांगने से परे देखिए, आप ढूंढने के स्तर में जाते हैं, फिर खटखटाने के स्तर में जाते हैं। God will honor you. परमेश्वर आपका आदर करेगा। Somebody lift your hand and say, I receive this word. खुद अपने हाथ रख कहे, मैं इस वचन को ग्रहण How do करता you हूं। crucify the flesh? शरीर को क्रूस पर चलाना Surrender. कैसे है? यह है समर्पण। Lord, प्रभु बस हो गया, मेरा काम नहीं हो रहा, मुझे पता नहीं, छोड़ो काम। प्रभु मेरा जीवन ले ले अभी, तू चल। कितनों सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? दूसरा लेवल प्रार्थना। Everyone say prayer. सभी लोग कहे प्रार्थना। तीसरा लेवल, राइट इट डाउन। तीसरा वर्शिप। सब जो बोले वर्शिप। सभी लोग कहे आराधना। जोर से बोलिए, जोर से बोले आराधना। आराधना सुनिए, कोई कोई लोग आराधना करते हैं ना, बोलते कितना अच्छा म्यूजिक है ना, बाजू वाले को तेरी आराधना नहीं हो रही। अपने पड़ोसी को बोलिए, आपकी आराधना नहीं हो रही। कम ऑन। हम गिफ्ट लेके जाते हैं। सोचो किसका बर्थडे, सोचिए पास्टर सीमा का बर्थडे एग्जांपल। पास्टर सीमा के लिए मैंने परफ्यूम लिया है, तो क्या मैं वो परफ्यूम मैं खुद पे मार के जाऊंगा क्या? थोड़ा सा पास्टर साहब, नो, मैंने पास्टर सीमा के लिए परफ्यूम लिया है सर, तो मैं परफ्यूम खुद पे क्यों मारूं? बोले नहीं, थोड़ा सा स्मेल करके जाता हूं। अच्छा है। जब तक वडाला पहुंच जाऊंगा, जब तक चेंबूर पहुंच जाऊंगा, पूरा आधा बाटली खाली। अरे बाबा, यस और नो? यस। That is how many people do worship. इसी तरह से बहुत सारे लोग आराधना करते हैं। किती छान आहे वर्शिप, हालेलुया, काय कॉर्ड आहे, काय वा। आणि कॉर्ड बंद झालं तर, लाईट गेली तर, अरे यार, वर्शिप कीबोर्ड से, ड्रम से वर्शिप नहीं होती, वर्शिप आत्मा से होती है। बोले मेरे बाजू में कौन बैठा है, मेरे बाजू में कौन बैठी है, छोड़ दे, मैं प्रभु की आराधना करूंगा। आज मूड नहीं, फिर भी आराधना करूंगा। Your flesh will die. आपका शरीर मरेगा। Somebody lift your hand and say, I receive right now. कहीं तो कहे मैं ग्रहण करता हूं इस I वक्त। tell you today, sir, Okay, you may be a poor man, you may be a rich man. Today, when you worship like that, hey, चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर ही क्यों ना, लेकिन अगर आप इस तरह से आराधना करेंगे, you have no money, आपके पास पैसे नहीं, no position, कोई पद नहीं, आपके पास nothing. कुछ नहीं है, Worship the Lord. प्रभु की आराधना करें। God will honor you. That flesh will die. परमेश्वर आपका आदर करेगा, वो शरीर That मरेगा, flesh will die. वो शरीर मरेगा। Somebody say, I will worship God. कोई तो कहे मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। Hallelujah. Come on, everybody, Hallelujah. lift your hand and say, I'll worship चलिए God. सब लोग अपने हाथ उठाकर मैं प्रभु की आराधना करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. जोर से बोलिए Hallelujah. हालेलुया। And the fourth thing और चौथी चीज is fasting. वो उपवास। Fasting. उपवास, Fasting will kill the flesh. उपवास करना जो शरीर को मारेगा। Fasting will kill the flesh. उपवास शरीर को मारेगा। कितने लोग सुनते हैं मैं क्या कह रहा हूं? Fasting में flesh दब जाता है और spirit उभरता है. Look at somebody and say, fasting किसी को देख रहे हैं, उपवास suppresses the flesh शरीर को घटाता है and increases the spirit. और आत्मा को बढ़ाता है। That is why you have to fast. 5 days remaining, sir. 5 days. Sister, 5 days. Brother, 5 days remaining. Join with us. यानी भाइयों बहनों देखिए 5 दिन बचे हैं, जुड़ जाए हमारे साथ। Today, God is going to honor you. आज परमेश्वर का आदर करने जा रहे हैं। Hallelujah. Today I shared with you, a young woman, you have many dreams. How, Pastor? How, Pastor? This is the way you can rise up into those dreams. और एक नौजवान मेरा जिसमें बहुत सारे सपने हैं, कैसे आप बढ़ सकते हैं, कैसे आप देखिए उन सपनों को साकार कर सकते हैं, ये तरीका है करने का। Can I tell you one thing? एक चीज बता सकते हैं, Many years ago, कई साल पहले सुनिए, 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 सुनिए. Many years ago, कई साल पहले I met one man. एक आदमी से मिले, He was not a Christian. वो मसीह नहीं थे। सुनिए, सच बोल रहा हूँ. उस टाइम हम लोग फ्लाइट वाइट पे नहीं, ट्रेन में जाते थे. सुनो, ट्रेन में बहुत इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं. तो मुझे ना लोगों से बात करने बहुत अच्छा लगता है. मेरी टीम जानती है, किसी से भी बात करता हूं मैं. तो वो थोड़े बूढ़े थे, किधर जा रहे थे मैं नहीं बताऊंगा किधर. और उस दिन में I was traveling on 30th I think, yes, 30th. 30 तारीख को कुछ था। 30th of December. 30 दिसंबर। तो सिंह सर, वो जानते थे कि मैं पास्टर था और वो दूसरे इसके थे. हेलो, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? और हम लोग अपने शेयर कर रहे थे, एक दूसरे से शेयर कर रहे थे. मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा था, मेरी निंदा नहीं कर रहे. और एक चीज उन्होंने बताई, वो आज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ. He's saying on the first, he's saying
at the start of the day, उन्होंने कहा दिन के शुरुआत में, at the start of the month, महीने के शुरुआत में and at the start of the year, और साल की शुरुआत में God writes something. परमेश्वर कुछ तो लिखता है. You didn't understand, sir? I'll say that again. At the start of the day, commanding your morning. दिन की शुरुआत में Come देखिए, on आपने now. सुबह को आज्ञा दो. Did Jesus not do it at the start of the day? क्या यीशु दिन की शुरुआत में नहीं Early before the day could rise. करते? तड़के सुबह, At the start of the month. महीने के शुरू में. In Africa, prophets always give a blessing. This month, at the start of the year. और फिर साल की शुरुआत में. Saying, खुदा कुछ लिखता है. खुदा कुछ लिखता है लोगों के जीवन में. तो सर मैं बोला, सर तो आप क्या बोलना चाहते? उसने मुझे कहा, पास्टर जी कल का दिन प्रार्थना में बिताओ. बोला कल 31 है. इससे हमारे इसमें लिखा है कि उस दिन आपको ट्रैवल नहीं करना है, प्रार्थना में रहना है. और फिर भी लोग पार्टी में जाते हैं, पार्टी शार्टी करते रहते हैं इधर उधर, और कैसा भी प्रवेश करते हैं, वो बोल रहे थे. और मैंने बाइबल खोल के देखा तो वहां पे लिखा है क्रॉस ओवर. I want to tell everyone that's watching. सभी से कहना चाहते जो देख रहे हैं. You see, when you go from 31st to 1st, देखिए जब आप 31 से पहली तारीख को जाते हैं, don't enter with the flesh. शरीर के साथ मत जाएं, Enter in the spirit. आत्मा में जाएं. Enter in the spirit. आत्मा में जाएं, Enter in the spirit. आत्मा में जाएं. Prepare these 5 days. The 5 is the number of grace. और ये 5 दिनों में तैयारी कर देगी. 5 is the number of grace. अनुग्रह की संख्या है. Somebody say, I received this word. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता है. सोचो You may be poor person, you may be broken person. I join my hands. Listen, अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो भी सुनिए, या प्रभु आपसे बात कर रहे हैं. Sir, 5 days you spend in the presence of God. अगले 5 दिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं. Yes, I'm not saying you don't go to work, but give that time to God उस समय को परमेश्वर को दें. and see how God will change your और story फिर देखिए परमेश्वर कैसे आपकी कहानी बदलता for है. His glory. उसकी महिमा के लिए. Somebody receive this word. कोई तो ग्रहण करे इस वचन को. Somebody receive this word. कोई तो ग्रहण करे इस वचन को. Hallelujah. Hallelujah. Everyone say, first is surrender. सब लोग कहें पहला है समर्पण. Second is prayer. दूसरा है प्रार्थना. Come on. Third is what? तीसरा क्या है? Worship. And fourth is what? चौथा क्या है? Fasting. 4 ways you can crucify the flesh. हमेशा आप शरीर को क्रूस पे चला सकते हैं. Hallelujah. And the last one, और आखिरी, you confess the word. आप वचन का अंगीकार करें. Everyone say, confess the word. सब लोग वचन को अंगीकार. Everyone say, confess the word. सब लोग वचन का Keep your अंगीकार. hand on your head and say, अपने सिर पर हाथ रखकर my कहें, body is a temple of the Holy Spirit. मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. The Spirit of God dwells in me. परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है. Hence, sin shall no longer reign in my body. इससे पाप मेरे शरीर में प्रभुता नहीं The करेगा. Holy Spirit will reign in my body. पवित्र आत्मा मेरे शरीर में शासन करेगा. Hallelujah. हालेलुया. Open your mouth and shout an amen, somebody. अपना मुख खोले जोर से चिल्लाएं आमीन. इस समय. Hallelujah. Thank you, Jesus.